Dear sweet children, having morning faces, at first wish you all a very sweet morning, kurkure morning, lovely morning, fantastic morning. Dear kids, in the previous video, you have enjoyed the birth of language. आपने पिछले वीडियो में बच्चों मज़ा लिया होगा कि हाउ once and once upon a time, thousand years ago, there was no language. Man was languageless. Man was भाषालेस. आदमी के पास भाषा नहीं थी. एंड प्रेजेंटली मैन इज ब्लेस्ड विथ सो मेनी लैंग्वेजेस. और आज आदमी के पास बहुत सारी भाषाएं हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर मोर देन 3000 लैंग्वेजेस. पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बच्चों लगभग 3000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं. उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू दैट एनी लैंग्वेज हैज़ 2 फॉर्म्स. किसी भी भाषा के 2 रूप होते हैं. आप जानते हैं इस बात को, यू नो इट. वन फॉर्म इज़ द ओरल फॉर्म, दैट इज़ द स्पोकन फॉर्म, which we learn at first, and the other form is its written form, that is लिखित भाषा, which we learn after having or after learning language in its oral form or spoken form. पहले हम किसी भी भाषा को मौखिक रूप से सीखते हैं और उसके बाद तो हम लिखने के प्रोसेस में आते हैं. उस भाषा को हम लिखते हैं या फिर हम लिख कर सीखते हैं. Dear kids, in that video, English language has got its birth, and we have celebrated its Chhathi also. We have enjoyed the sweets also, the different dishes also. सबका मज़ा हम लोगों ने लिया था. Now, if you want to know English, you have to learn its grammar. सीधी सी बात है भाई. आप you play so many games, and different games have different नियम्स, different rules, different regulations. हर गेम के अपने अपने नियम कानून हैं, अपनी अपनी व्यवस्था है. एवरी गेम हैज़ इट्स ओन फीचर. हर गेम की अपनी अपनी विशेषता है. क्रिकेट इज नॉट प्लेड लाइक फुटबॉल. फुटबॉल इज नॉट प्लेड लाइक हॉकी. हॉकी इज नॉट प्लेड लाइक कबड्डी. कबड्डी इज नॉट प्लेड लाइक द गेम हाइड एंड सीक और डेंगा पानी और लुका छिपी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. व्हाटसोएवर गेम्स you play, I know you play different games. So you must have witnessed it, you must have watched it, that almost all the games are of different nature, having different rules, different regulations. हर गेम का की अपनी व्यवस्था, अपना नियम, अपना कानून. तो देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस एज आई हैव टोल्ड यू, और एज यू नो आल्सो. आप तो ज़्यादा विद्वान हैं, आप तो ज़्यादा जानते हैं हमसे भाई. तो उसी तरीके से बहुत सारी भाषाएं हैं. अब भाषा होगी तो व्याकरण होगा, बिकॉज नो लैंग्वेज can exist without grammar,
without its व्याकरण, because grammar is the backbone of a language. जैसे आपके पास बैकबोन है, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी. बताइए, सपोज if one takes out the backbone from your body, what will happen? You will fall. You will not be in a position to stand up. आप खड़े नहीं हो पाएंगे, गिर जाइएगा, शरीर सीधा ही नहीं होगा. तो it is the backbone which helps you to stand, which helps you to walk, which helps you to do different activities. You play just because you have backbones. You have reed. तो व्याकरण is the reed of any भाषा, you can say, any language, you can say. English language has its own grammar. अंग्रेजी भाषा का भी अपना व्याकरण है बच्चों. अब सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, let us come to know about grammar. So if I tell you anything about grammar, you will think that this foolish person is telling anything regarding grammar. So it is better I should call grammar itself. I am calling the grammar. मैं ग्रामर को ही बुला देता हूँ. और व्याकरण खुद it will tell you about itself. He will tell you about himself. Now, let us welcome grammar. Good morning, dear kids. Myself, grammar. I am a very, very important thing. I am a very lovely thing, very beautiful thing also. I am a very good friend of kids. मैं बच्चों का दोस्त हूँ. I love kids. I love the kids. Kids like you, who have morning faces. I am the science. Dear kids, I am the science which helps to read, write and speak a language correctly. मैं कौन हूँ? मैं व्याकरण हूँ, जो सहायता, मदद पहुंचाता हूं किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ने में, बोलने में और लिखने में. प्यारे बच्चों, having sweet faces, without me there is no existence of language. If you do not care for me, if you do not care about me, you won't be in a position to learn a language in a good way, in a better way. And in that case, you won't be in a position to enjoy reading a language, writing a language, or speaking a language. Because when you play any game, at first you try to
learn about its basic nature. You try to learn its rule and regulation. And then, after learning the almost all the things which are related to that particular game you are playing, it becomes easy for you to play that game. Playing that game delights you, provides you pleasure, happiness, joy. आप खूब मज़े लेते हैं उस गेम के, खूब इंजॉय करते हैं आप उस गेम का, क्योंकि आपको नियम कानून पता है. तो if you want to read, speak and write a language correctly, you have to come to me. You have to befriend me. There is no other option. और कोई चारा नहीं है आपके पास, आपको मेरे पास आना होगा, मुझसे दोस्ती करनी होगी, जान पहचान करनी होगी, और आई विल हेल्प यू डेफिनेटली. मैं आपको हेल्प भी करूँगा, सहायता पहुँचाऊँगा. इट्स माई प्रॉमिस. एंड माई हेल्प विल हेल्प यू. मेरी सहायता आपको सहायता पहुँचाएगी in learning a language correctly. You will be able to read, write and speak a language correctly. शुद्ध शुद्ध, सही सही. If you do something wrong in any subject, your teacher corrects that, helps you in correcting that, tells you that it is not right, it should be done like this. If you play any game and there you fail to do justice, you commit any error, there are referees, umpires and some other persons who tell you that you should play this game like this. So, if you commit any error in reading, speaking or writing any language or language, the grammar of that particular language, it means it is I who helps you, or it is I who help you. So, I am a very wonderful thing. So, as I have told you that I belong to each and every language. Where there is a language, there I exist or I exist there. जहाँ कहीं भी कोई भाषा होती है, मैं वहाँ होता हूँ. हिंदी लैंग्वेज has its own grammar. Urdu has its own. Sanskrit has its own. Likewise, English language has its own grammar. जैसे हिंदी का व्याकरण होता है, हिंदी में आप पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, एक वचन पढ़ते हैं, बहुवचन पढ़ते हैं, लिंग निर्णय करते हैं, मुहावरे पढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं. उर्दू में भी वैसी चीज़ें हैं. संस्कृत व्याकरण आप पढ़ते हैं, तीता अंति सीता था, आमी आवह आमहा पढ़ते हैं, सहतौते पढ़ते हैं, बालकह बालको बालकह आप याद करते हैं.
रामः रामो रामः आप याद करते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ग्रामर। उसी तरीके से बाबू, डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ग्रामर। तो अब तो नाउ इट इज क्लियर कि अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, खेल रहे हैं, तो द रूल्स ऑफ क्रिकेट विल हेल्प यू इन प्लेइंग क्रिकेट। इफ यू आर प्लेइंग फुटबॉल, द रूल्स ऑफ फुटबॉल will help you play that particular game in a nice way, because आपको पता है कि if you want to have mango, you have to go to the mango tree, because a mango tree can provide you mango. The tree of lychee will provide you lychee, not mangoes. So likewise, if you want to learn English and you are reading the grammar vyakaran of Hindi, it is not going to help you. If you want to learn English and you are reading, you are going through the vyakaran of Urdu, it is not going to help you in a proper way. However, I must tell you that there are some common rules in games also. So each language has some relation with each other. Each language is related to each other. That is the different case. हर भाषा जो है दूसरी भाषा से कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन होता है। जैसे भारत एक देश है, आप जानते ही हैं, आप भारत में रहते हैं, यू आर इंडियंस, हिंदुस्तानी हैं आप। तो देयर आर डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। भारत में बहुत सारे राज्य हैं। अब आप साउथ इंडिया जाइए, दक्षिण भारत, वहाँ भी तो आपको मिलेंगे आदमी, लोग मिलेंगे, वही हाथ, दो पैर, नाक, कान, सब कुछ तो वैसा ही है। लेकिन आप देखेंगे, और अपने बीच भी आप देखते हैं, साथियों के बीच कुछ लोग वाइट हैं, गोरे होते हैं, कुछ लोग जामुन के कलर के होते हैं, कुछ लोग गेहूं के कलर के होते हैं, कुछ लोग छोटे लंबाई में होते हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं, लंबे, टॉल जिनको आप कहते हैं, हाइट उनकी ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है तो सब आदमी ही ना। ऐसा तो नहीं है कि लंबे कद वाले को आप कहते हैं देखो, देखिए ये जिराफ है, ठीक है, चिढ़ाने के लिए आप उसको बोल सकते हैं, हंसने के लिए, हंसाने के लिए, कि देखो जिराफ आ रहा है। आपका कोई दोस्त है जो बहुत लंबा है, मान लीजिए, आपने उस चिढ़ाते हुए कहा देखो 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 जिराफ आ रहा है, जिराफ आ रहा है। कोई बहुत मोटा है, आप कहते हैं देखो देखो हाथी आ रहा है। वो हाथी थोड़े है, 4 पांव है उसके, क्या कि वो हाथी हो गया। आप चिढ़ाने के लिए बोलते हैं उसको। दैट इज अनदर थिंग, वो बात अलग है। तो हर आदमी में कुछ न कुछ चीजें तो कॉमन है। आपके भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 हाथ हैं। आप गोरे हैं, वो काला है आपका दोस्त, मेरी तरह का जमुनिया रंग का मान लीजिए, तो मेरे भी तो 2 ही हाथ हैं, आपके भी 2 हाथ हैं, आप गोरे हैं मिल्क की तरह, बट यू हैव 2 हाथ्स, यू हैव 2 हैंड्स, आई टू हैव 2 हैंड्स। You have 2 holes in your nose, I too have 2. You have 2 eyes, I too have the 2. You have 2 ears, I too have 2. वैसे ही भाषाएं भी
एक दूसरे से संबंध रखती हैं। जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं, नाना दादी, चाचा चाची, ताता ताती, मौसा मौसी, भैया भौजी, एसेट्रा एसेट्रा, यू हैव डिफरेंट रिलेशंस। Likewise, language has its own relation with each other. भाषा का भी एक दूसरे से संबंध होता है। फिर भी every language has its own particular grammar. So English grammar is that science which helps you to read, speak and write English correctly. Dear students, I am the English grammar and I help you to read, speak and write English language correctly. अब suppose there is a fruit known as mango, and if someone asks you what is the Hindi of mango, you say आम। अब वो व्यक्ति आपसे पूछता है, he asks you कि आम को कैसे बोलते हैं, जरा हिज्जे करके हमको बताओ। अब आप में से किसी स्टूडेंट ने पट से कह दिया ओ आकार आ मो आम। बगल से कोई आदमी गुजर रहे थे, बगल से व्याकरण गुजर रहा था। व्याकरण वाज पासिंग बाय, व्याकरण बगल से गुजर रहा था। व्याकरण ने सुन लिया, व्याकरण ने कहा अरे ये बच्चा तो गलत बोल रहा है, ये तो कह रहा है ओ आकार आ मो आम, ये तो गलत है। व्याकरण ने आपको बताया कम हियर आओ, इट इज नॉट लाइक दिस ओ आकार आ मो आम, यू हैव टू से आ मो आम। उनको क्या करना है भैया, आ मो आम। आप बोल रहे हैं, किसी ने आपको कहा कि भैया वाटर मीन्स क्या होता है, आपने कहा पानी, कहा पानी कैसे बोलते हैं, बोल के बताओ। आपने कहा प आकार प, न हर्षिकार नी, पानी। हो गया गलत। बगल से व्याकरण गुजर रहा था, व्याकरण को लगा कि अरे ये तो बच्चा गलत बोल रहा है, अगर ऐसे ही बोलता रहेगा तो आगे तो दिक्कत होगी इसको। उसने आपको समझाया, बच्चे इधर आओ, गोद में उठाया, प्यार से सहलाया, ट्रॉफी भी आपको दिखाने के लिए, और तब बताया आपको कि बउआ पानी कैसे बोलते हैं, प आकार पा, न दीर्घिकार नी, पानी। आ रहा है ना मजा आपको? किसने सिखाया आपको, यह बताइए। अब व्याकरण जा रहा था, उसको क्या मन था नहीं बताता आपको, क्या बिगड़ता व्याकरण का, उसका कोई लॉस तो होने नहीं जा रहा था, लेकिन व्याकरण को लगा कि नहीं नहीं। हाँ, देन उसने आपको बताया, क्यों? क्योंकि वह आपको प्यार करता है, वो नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे गलत बोलें। किसी ने आपको कहा पानी लिखने के लिए, मान लीजिए आपने लिख दिया प आकार प, न हर्षिकार नी, पानी। अब लीजिए, देयर वंस अगेन द ग्रामर विल कम, व्याकरण विल कम टू हेल्प यू। वो आपको बताएगा कि नहीं, इट शुड बी रिटन जस्ट लाइक प आकार प, न दीर्घिकार नी, पानी। आपको लिखना है मान लीजिए कलम, आप लिख रहे हैं क मो लो, आप पढ़ रहे हैं उसको कलम। बगल से गुजर रहा था व्याकरण, फिर देखा अरे ये बच्चा तो
बोल रहा है क म ल, अब पढ़ रहा है उसको कलम। उसने आपको बताया कि नहीं नहीं, अगर आप लिख रहे हो पढ़ रहे हो क म ल, तो इसको कमल पढ़ो, और अगर पढ़ रहे हो क ल म, तो इसको कलम पढ़ो। तो क म ल कमल, क ल म कलम। कैसे समझ लिया आपने? हाउ यू केम टू नो दिस? इट इज बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ ग्रामर। In English also, if you write BUK book, BUK book, तब तो आपको दिक्कत होगी। Grammar will come and tell you, no, the spelling of book is not this, it is BOOK book. BOOK book. Book is not written like this BUK. And if you pronounce book, BOOK book, once again grammar will come and tell you, no friend, you have not to pronounce it like this. इसका उच्चारण ऐसे नहीं होगा। BOOK should be pronounced as book, not as book. दीर्घोकार नहीं बोलना है इसमें, हर्षोकार बोलना है। If you write PNE and pronounce it as pen, once again grammar will come and tell you, no, the spelling of pen is PEN, pen, and you are pronouncing PEN as pen, pen. Once again grammar will rush you, दौड़ा दौड़ा आपके पास आएगा, भागा भागा, हाँफता हुआ, भागता हुआ। Oh, what are you doing? क्या कर रहे हो? जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, मान लीजिए आप बॉलिंग कर रहे हैं, यू आर बॉलिंग, और वाइड पर वाइड फेंके जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, वाइड पर वाइड, क्या होगा? द कैप्टन विल रश टू यू, अदर फील्डर्स विल आल्सो रश टू यू and tell you, oh, what are you doing? क्या कर रहे हो भाई? Wide after wide, wide after wide, back to back wide. प्लीज 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 यार, कुछ सोचो यार, ऐसे करने से काम कैसे चलेगा? हाँ, तो भी आपके पास दौड़ता हुआ आएगा व्याकरण, क्या? नो 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 किड्स, नो नो नो, नॉट लाइक दिस. PEN is pen. PEN, pen. Pen means kalam. A PAIN, pain. Pain means दर्द, पीड़ा, जो पीड़ा आपको होती है when you read, when you have to go to school, when teachers punish you, when sometimes your parents punish you, and when sometimes you have to go through my videos also. Watching my video also pains you. So it is, see the difference between PEN and PAIN. उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन देखिए दोनों का. PEN पेन, अब PAIN पेन. कहां से आपने सीख लिया बताइए? किसने आपको बताया? Who told you? It is I, your friend, grammar. So don't you think I am a very, very fantastic person, a very nice man, a very gentle man, a very helpful man, a very friendly man? So that's all for today. We will meet together once again through other videos. Till then,
enjoy yourself, be bold, be bubbly, do handsome works, do good jobs, good works, play a lot, eat a lot, sleep a lot, at the same time read a lot. Thank you. God bless you all.